Hello everyone, students, how are you? I hope you all are fit and fine. That's good. Students, today I will explain you Faraday law from electrochemistry chapter. And already we have read in our previous class Nernst based questions and Gibbs free energy based questions. Students, regarding Nernst and Gibbs free energy based questions are very important. If you have any kind of confusion and or doubt, you all can ask to me individually. Definitely I will solve your problem. Now today I am going to explain Faraday law. What is Faraday law and why Faraday has given their law for electrochemical cell? Yes, electrochemical cell. Have you remember electrochemical cell? Electrochemical cell basically two type, that is electrolytic cell and second one is galvanic cell. Do you have remember electrolytic cell? This type of electrolytic cell in which electrolytic solution like as a NaCl is a electrolyte, and if NaCl make a aqueous solution, means aqueous solution of NaCl, this aqueous solution is known as electrolytic solution. What is the meaning of electrolytic or electrolyte? When a component dissociate into positive and negative ion, that component is known as electrolyte. Same as here NaCl. NaCl can dissociate in positive or negative ion. So we can say NaCl is a electrolyte and the aqueous solution of NaCl is a electrolytic solution. In this electrolytic solution we have placed, because already I have taught, so I am saying we have placed two electrode, anode and cathode, and with the help of these electrode we will apply electricity to dissociate NaCl ion into positive and negative charge, and this positive ion will collect on negative electrode and this negative ion Cl negative ion will collect on positive electrode. So have you remember the work of electrolytic solution? In this solution opposite ion will collect on opposite electrode. It means after few time we will see here on positive electrode Cl change into their solid form. It means Cl negative ion from the solution will lose one electron and change into solid state. When Cl minus in negative ion, it is in negative state, it means it is in aqueous state. And when Cl minus lose one electron, then Cl change into solid state. Means solid state of Cl will collect on positive electrode and same as Na plus will also collect on negative electrode. How? This Na plus take electron from Cl, that will lose Cl to change into their solid state. That electron will take by the positive ion, and this Na plus positive ion take one electron change into solid state. Okay, students, this thing you have to be remember or learn that any ion, कोई भी आयन प्लस हो या फिर माइनस हो, वो हमेशा अनस्टेबल होता है और एक्वस स्टेट में कहलाता है. एक्वस स्टेट में इसलिए कहलाता है क्योंकि सॉल्यूशन, जो भी इलेक्ट्रोलाइट जब हम लोग उसे सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूशन मींस वाटर में डालते हैं, तो वो अपने प्लस माइनस आयन में ऐसे टूट जाता है. इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, अपोजिट आयन को कलेक्ट किया और अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया. तो जब तक ये Na प्लस Cl माइनस पॉजिटिव और निगेटिव आयन में था तो उसका स्टेट था एक्वस. ये कलेक्ट होने के लिए अपने आप को क्या करेगा, सॉलिड स्टेट में चेंज करेगा. तो Cl
माइनस ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, किस स्टेट में हो गया, सॉलिड में। जब ये सॉलिड में हो जाएगा तो इसमें नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोड पर, और निगेटिव था तो इसलिए किस पे गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। सेम एज Na पॉजिटिव था तो किस पे गया, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे। तो अब आपको फेराडे ने क्या कहा, फेराडे ने कहा कि ये जो इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वर्क हो रहा है, इट्स मीन W हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें अप्लाई किए गए चार्ज के। इस W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q को हम लोग बोलेंगे फेराडे फर्स्ट लॉ, फेराडे फर्स्ट लॉ। So according to this proportionality, we can say that the definition of Faraday first law, you all can write with me. The Faraday first law, when an electric current apply into electrolytic solution, then the amount of substance deposited is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को देख करके आप डेफिनेशन बना सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, so is directly proportional to the apply charge into the solution। ओके, तो आपको ये डेफिनेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेन ये चीज है जिसके बेस पे हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आता है इसके बेस पे, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो आप इसी से बना सकते हो कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के है, इट्स मीन वर्क और वर्क, व्हाट इज वर्क, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट देयर अपोजिट आयन and collect their opposite ion on opposite electrode. Okay, so this is the work of electrolytic cell which is directly proportional to the charge. Means जितना ज़्यादा आप इसमें करंट सप्लाई करोगे उतना ज़्यादा वर्क होगा, प्लस माइनस आयन उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होंगे। तो ये प्रोपोर्शनल साइन लगा है, जिसका मतलब अब यहाँ पर आपको पता है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, और आपने पढ़ा है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, IT। I का मतलब होता है करंट, T का मतलब टाइम। तो मतलब जितने टाइम ड्यूरेशन में, हम कह सकते हैं जितने ड्यूरेशन में, जितने टाइम पीरियड में आपने करंट सप्लाई किया, इलेक्ट्रिसिटी गई, उसको क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का साइन है, जब इसे हटाते हैं तो यहाँ पर आता है Z, तो हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ZIT। ओके स्टूडेंट, अब ये Z क्या है, तो Z है इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ओके, इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इसको हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए हैं, जहां पर हमने आपको इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन किया था या फेराडे कांस्टेंट एक्सप्लेन किया था। ये Z का भी एक फॉर्मूला होता है। Z का क्या फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 IT। So this formula is very important for 1 marks of question, because only you will use the formula and put the value and solve the amount of electrolyte or amount of substance that will collect on opposite electrode. Okay, so I hope you understand, and after then we will solve one. So student, now I am going to take one example to explain Faraday first law. You all can write with me. The question is calculate the
mass of copper when 0.3 ampere current supply in aqueous solution of copper sulfate for 3 hour. ओके, सो 3 आवर तक, यहाँ पर 3 आवर हमने ले लिया है फॉर 3 आवर. सो 3 आवर तक कितना करंट इसमें सप्लाई किया गया? 0.3 एम्पियर. क्या कैलकुलेट करना है आपको? मास ऑफ कॉपर. सो फर्स्टली यू विल राइट व्हाट इज गिवन in this question. So given in this question, firstly question is asking mass. So mass of copper, it's mean small w for copper is question mark. Okay, and 3 ampere, it's mean I is equals to 0.3 ampere, and current supply for 3 hour, it's mean T is equals to 3 hour. If I ask the molecular mass of copper, अगर कॉपर की मॉलिक्यूलर मास की जरूरत हुई तो आप क्या रखोगे? तो आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्मॉल m से. किसका? कॉपर का. वो कितना होता है? 63. क्लियर? तो मॉलिक्यूलर मास कॉपर का कितना होगा? 63 होगा. अब आपको निकालना है W, तो हम लोग यूज करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ. क्या है फैराडे फर्स्ट लॉ? हम लोग का डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं जो अभी हमने कुछ देर पहले समझाया है. हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? W इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 और I इंटू टी. ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने समझा है कुछ देर पहले. इस फॉर्मूले में आप W निकाल सकते हो, I पुट कर सकते हो, T पुट कर सकते हो, लेकिन इक्विवेलेंट वेट नहीं है. तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इक्विवेलेंट वेट रखना होगा. और कैसे इक्विवेलेंट वेट रखोगे? तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी आयन का, क्योंकि कॉपर का हमें पता करना है कि अमाउंट ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है, तो जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, क्योंकि कॉपर हमें यहाँ पर पता करना है, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट रखेंगे. तो जिसका भी निकालना हो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको क्या रखना होता है? ऊपर. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट एज अ न्यूमरेटर यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट आपका न्यूमरेटर हो गया. अब यहाँ पर अपॉन के फॉर्म में, ध्यान से देखना, अपॉन के फॉर्म में हम लोग को यूज करना है नंबर ऑफ कैटायन. तो क्योंकि नंबर ऑफ एनायन होगा, अगर निगेटिव आयन होगा तो नंबर ऑफ एनायन, अगर पॉजिटिव आयन होगा तो नंबर ऑफ कैटायन. तो अब जो कॉपर होता है ना, वो एक्वस स्टेट में जब होता है तो उस पे कितने पॉजिटिव चार्ज आते हैं आपको पता है? Cu पे +1 चार्ज भी होता है और +2 भी होता है. +1 कब बोला जाएगा? जब Cu सॉलिड स्टेट में होता है तो उस पे चार्ज होगा +1, और अगर Cu एक्वस स्टेट में है तो वो हमेशा +2 चार्ज शो करेगा. ध्यान रखना. तो जो इक्विवेलेंट वेट आप Cu का निकाल रहे हो, यहाँ पर आप क्या रखोगे? मॉलिक्यूलर वेट Cu का रखोगे, दैट इज 63. और नंबर ऑफ कैटायन, तो Cu आपका क्या है? इक्विवेलेंट वेट किसका निकाल रहे हो? Cu का निकाल रहे हो, जिसपे कितने प्लस चार्ज होते हैं? 2 प्लस चार्ज. तो नंबर ऑफ कैटायन मीन्स कितने प्लस चार्ज है? 2 है, तो 2 लिखोगे एज अ डिनोमिनेटर. डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हमारा डिवाइड करने पे ये आया 31.5. ओके, तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हम लोग को क्या रखना होगा? 31.5. तो अब यहाँ पर यूज करेंगे नाउ द फॉर्मूला. सो अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया? इक्विवेलेंट वेट. नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ W फॉर वेट ऑफ और मास ऑफ कॉपर. फॉर्मूला वेट का हम लोगों ने क्या लिखा है? इक्विवेलेंट वेट. तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट की जहां रखेंगे 31.5, फिर 96500, I की जहां I की वैल्यू 0.3 एंड T जो है आपका 3R है. तो 3R को आपको किस में चेंज कर देना होगा? सेकेंड में.
तो फिर क्या होगा, 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दैट विल चेंज इन सेकेंड। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, W। इसी को कैलकुलेट करके फिर आप अपना आंसर दे सकते हो। स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी होते हैं, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बनाइए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन बहुत करने होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो। और आपकी केमिस्ट्री में ये सभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो अक्सर आते ही हैं, तो फिर डोंट टेक लाइटली कि फिर हम लोग कर लेंगे या फिर हो जाएगा। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, स्मॉलेस्ट टर्म से आप लोग अगर डिवाइड कर रहे हो या फिर कुछ भी काटा पीटी कर रहे हो तो फिर वो साइड में करना। यहाँ पर केवल आपको क्या करना होगा, W इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर लिखना होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान लो कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, तो आप इसे स्मॉलेस्ट टर्म में करके फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आंसर अपना छोड़ सकते हैं। एग्जामिनर उसके लिए भी आपको फुल मार्क्स देगा, बशर्ते कि आपका कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको फैराडे फर्स्ट लॉ अच्छे से आ गया है। अब हम लोग समझेंगे फैराडे सेकेंड लॉ। सो टेक स्क्रीनशॉट। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे फैराडे सेकेंड लॉ। सो फैराडे सेकेंड लॉ है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब इस तरीके के 2-3 सेल ले लिए जाएं, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला जाए। जैसे कि फर्स्ट बीकर में हमने ले लिया जिंक सल्फेट, सेकंड बीकर में हमने लिया कॉपर सल्फेट और थर्ड बीकर में हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट। ओके, अब ये तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, जिसको हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया और इलेक्ट्रोड्स को क्या किया, अपोजिट इलेक्ट्रोड को अपोजिट सॉल्यूशन में या फिर उसके इलेक्ट्रोड से उसे कनेक्ट कर दिया एक सिंगल सीरीज से। जैसे कि देखो, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, निगेटिव इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया और फिर इसका पॉजिटिव लास्ट थर्ड वाले के निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो सब एक सिंगल सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जब ये एक ही सीरीज में कनेक्ट है तो जो करंट हम लोग इसमें सप्लाई करेंगे वो क्या होगा, सेम टाइम पे, मींस उसी टाइम पीरियड में सप्लाई होगा और इक्वल अमाउंट में इसमें करंट जाएगा। तो इक्वल अमाउंट में अगर करंट जाएगा, क्योंकि एक ही सीरीज से कनेक्ट है, तो फिर क्या होगा, इनका जो वेट यहाँ पर इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होगा, इलेक्ट्रोड्स पे जो भी मेटल के वेट आपके कलेक्ट होंगे वो क्या होंगे, फैराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग उनका जो वेट होता है और उनके जो इक्विवेलेंट का रेशियो होता है वो हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर हमने पहले से लिख रखी है, क्या बोलेंगे, when the same quantity of charge is passed through different electrolytic solution, जैसा कि उसमें हमने दिखाया है, then the mass of substance deposited at the respective electrodes will be in the ratio of their equivalent weight or we can say that mass। तो इनके अकॉर्डिंग, फैराडे के अकॉर्डिंग, या फिर हम लोग जब प्रैक्टिकली देखेंगे ना, एज अ प्रैक्टिकल देखेंगे ना, तो वो सेम ही मिलेगा कि जितना आप, क्योंकि एक ही सीरीज में आपने रखा है, इसे करंट सप्लाई कर रहे हो, आपको पता है कि आपके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के आयंस जो होंगे इलेक्ट्रोड्स पे यानी कि रॉड पे कलेक्ट होंगे, तो कितना कलेक्ट होगा वो, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई हो रहा है सभी बीकर्स में, तो उनके जो वेट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। वेट समझते हो, वेट का मतलब कि कितने ग्राम है, मिलीग्राम है, दैट इज वेट। तो जो भी अगर हम कहें जिंक का जो वेट है और जिंक का वेट और जिंक का इक्विवेलेंट वेट, ठीक, वो इक्वल होगा कॉपर के वेट के एंड कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के, मींस इसका रेशियो जो होगा इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट का वेट का रेशियो, वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो कॉपर के वेट और इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा। सेम
सिल्वर का जो है वेट वो इक्वल होगा, मीन सिल्वर का वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो वो इक्वल होगा कॉपर के वेट और इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के, और सेम एज जिंक के वेट एंड इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा। आगे बात समझ लें। तो इससे भी इस पर भी कुछ क्वेश्चंस आपके देखे जाते हैं। अब हम लोग हर क्वेश्चन को ये मान के चलेंगे कि ये बोर्ड में आना ही है, तो ही हमारा 100% रिजल्ट हमको मिलेगा। तो छोटे छोटे टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट के बेस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन इस साइड आपको हम दिखा देते हैं।